Welcome back students to e-learning platform Gyan Mantra Vidyapeeth online education. Students, in this revision section, the lesson last spring from your main textbook Flamingo, we discussed the first part in last video lecture. Okay students, so now in today's video lecture, we are going to revise the second part of this lesson. The title of this second part is I Want to Drive a Car. Okay, so here in this part also we will come to know the different story with different characters. And earlier the first part, it was the introduction of poverty of the person. The name of that boy was Saheb. Okay, so it was the story of Saheb, and in this second part it will be the story of Mukesh. Okay, so the condition is little bit same, the poverty, but the life, the story will be something different. What is this difference? That we are going to see right now. Okay students, you may keep your textbook with you. So, I want to drive a car. From this title itself, you can come to know that there is something about a car inside the story. इसके टाइटल से ही हम अच्छी तरह से ऐसे नो कर सकते हैं, ऐसे अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इसमें कोई कार का स्टोरी प्रेजेंट किया गया है. मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Actually, Mukesh is the name of character, his leading character of this story, and he is a boy who wishes to be his own master. वो अपने खुद का मास्टर बनने की सोच रहा है और उसने वो एक मोटर मैकेनिक बनने की सोच रहा है. वो ऐसे बोल रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. Do you know anything about cars? I asked. Here I means the writer. राइटर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है क्या नहीं. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Here I will learn to drive a car, Mukesh replies. Mukesh answers that actually he will learn the driving because उसे ड्राइविंग सीखना है और उसे मोटर मैकेनिक बनना है और इसीलिए वो कार चलाने को सीख लेगा. एक्चुअली इन हिज आई देयर इज अ काइंड ऑफ स्पार्क. उसकी आइज में ऐसा कुछ स्पार्क है. उसके ड्रीम के लिए वो ऐसे अवेयर है, वैसा उसे राइटर को अभी दिखाई दे रहा है कि वो अपने ड्रीम को लेकर काफ़ी अवेयर है. एंड उसकी कंपैरिजन यहाँ पे फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट्स की डस्ट से भी यहाँ पे की गई हुई है. See what is said here. His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill this town Firozabad, famous for its bangle. और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है. दैट फिरोज़ाबाद जो है वो अपनी बैंगल्स मेकिंग जो अपना बिजनेस है उसके लिए फिरोज़ाबाद काफ़ी फेमस है. It is the center of India's glass blowing industry where families, students you may underline also, it is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. ये जो प्लेस है जो फिरोज़ाबाद है वो उस अपनी बैंगल मेकिंग के लिए काफ़ी फेमस है और इंडिया में भी उसका काफ़ी नाम है. उसका जो मेन सेंटर होता है वो है वो यहाँ पे इंडिया में. और यहाँ की बहुत सारी ऐसी जनरेशन्स है, बहुत सारी ऐसी जनरेशन्स जिसने लोगों ने अपनी लाइफ इसी प्रोफेशन में स्पेंड कर दी है, इसी प्रोफेशन में स्पेंड कर दी है. और इन लोगों ने अपनी लाइफ इन तरीक़ों में से बिताई है. सी अराउंड द फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स, मीन्स ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बैंगल्स बनाने का, अपनी पूरी लाइफ इन लोगों ने इसी प्रोसेस में और इस बिजनेस में स्पेयर कर दिया है. बिकॉज सी इट इज़ अ मेन प्रोफेशन ऑफ दिस पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद एंड द लैंड, द एरिया सराउंडेड बाई फिरोज़ाबाद. सो यहाँ के लोगों का ये मेन प्रोफेशन है. Next paragraph students. मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग दैम. ये जो मुकेश है उसकी फैमिली है वो भी इन्हीं लोगों में से एक है. इन्हीं लोगों में से एक मतलब अमंग दैम मीन्स इट मीन्स the family of Mukesh also belongs to this business of
बैंगल्स मेकिंग, उसका फैमिली जो है वो भी बैंगल मेकिंग प्रोसेस है, बैंगल मेकिंग बिजनेस है, उसी से बिलोंग करता है। यहाँ पे ये इसका मतलब होता है, none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. Actually none of them know, उनमें से किसी को ये पता ही नहीं था कि मुकेश जैसे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए ऐसे जगह पे काम करना कि जहाँ वैसे भी उसे चाइल्ड लेबरिंग अलाउड ही नहीं है, पर वैसे भी स्पेशली इस जगह पर काम करना कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, सो वो बहुत ही इलीगल है, ये लॉ के अगेंस्ट है। सो इन लोगों में से किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं था दैट इट इज टोटली इलीगल। In dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Actually, बिकॉज ऑफ दिस अनअवेयरनेस, इन लोगों को ये पता नहीं था, और ये काफ़ी डेंजर भी होता है। ये जो बैंगल मेकिंग थिंग है, ये जो ग्लास मेकिंग थिंग है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइटनेस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डैमेज फॉर आवर आई साइट। ये हमारी आई साइट जो है, हमारा विजन है हमारी आईज का, उसे भी बहुत ही डैमेज करता है। सो ये एडवाइजेबल नहीं है स्पेशली बच्चों के लिए कि इस तरह के फील्ड में अभी से जुड़ जाना। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down striking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. सो यहाँ पे जो है उसकी सोसाइटी का, वहाँ के एरिया का ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया गया है हमें। सी दैट क्रम्बलिंग वॉल्स, दिस काइंड ऑफ वुबली डोर्स, यहाँ के डोर्स कैसे हैं, और यहाँ पे विंडोज तो कोई है ही नहीं, एंड इट इज़ रियली क्राउडेड विथ families of humans and animals. Actually crowded means the lot of people we can find at the same place, and the families were that much crowded. Family जो है उसमें बहुत सारे members हैं, and it is not see here mentioned that not only human beings but including with animals. जो family है उसमें सिर्फ human beings ही नहीं है, उसके साथ साथ वहाँ पे animals जो है वो भी वहाँ पे है। कोएग्जिस्टिंग इन द प्रिमिवल स्टेट मीन्स कि एक ही जगह में ये दोनों सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं और ह्यूमन बींग्स भी रह रहे हैं। एक फैमिली है जो वो बहुत ही ओवर क्राउडेड है, और यहाँ पे सभी लोग एक तरह से एक साथ से रह रहे हैं। दैट इज सेड हियर। He stops at the door of one such house. अभी एक जगह पे वो ठहर जाता है, stops at the door of one house, bangs a wobbly iron door with his foot. यहाँ he means Mukesh, we have to understand the same, and pushes it open. यहाँ पे वो डोर ओपन करता है, उसे ऐसे पुश करके, उसे ऐसे धक्का देके। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. यहाँ पे उसके he entered the room, he entered the house means अभी का जो ये डिस्क्रिप्शन है वो उसके घर के अंदर का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। सी इट सेड हियर, इट इज सेड दैट ही जस्ट पुश्ड द डोर, इट मीन्स नाउ ही एंटर्ड, एंड नाउ हियर वी कैन फाइंड द डिस्क्रिप्शन दैट व्हाट इज देयर इनसाइड द हाउस। सो वी कैन सी दैट it is firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. मीन्स कि वहाँ पे जो स्टोव है वो ऐसे फैंसी नहीं है, ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, वो ऐसे वुडन स्टोव है
जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में हम फाइंड कर सकते हैं, वो स्टव यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें बताया गया है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स are more chopped vegetables, means very boiled vegetables, and that is in chopped manner. उसे ऐसे चॉप किया गया है, उसे ऐसे बॉयल किया गया है। सो वहाँ पे वेजिटेबल्स है, वो एल्यूमिनियम की प्लेट्स हो, उसमें वो वेजिटेबल्स है। अ फ्रेड यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, जो यंग लेडी है वो कुक कर रही है, अपना जो सफ़र होता है, अपना का इवनिंग मील होता है, उसे वो कुक कर रही है। फॉर होल फैमिली, अपने पूरे फैमिली के लिए वो कुक कर रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, वहाँ पे उससे बहुत सारा स्मोक फील हो रहा है बिकॉज ऑफ कुकिंग। जब हम कुक करते हैं तो हम बहुत सारा स्मोक ऐसे हमारे सराउंडेड हम फाइंड कर सकते हैं। सो द सेम हैपन्स विद दिस वुमन ऑल्सो, बट देन ऑल्सो शी इज स्माइलिंग, फिर भी वो अच्छी तरीके से स्माइल कर रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की एल्डर ब्रदर जो है उसकी वाइफ है। नॉट मच older in years, she has begun to command respect as the bahu. Actually, she is not that much aged. Of course, she is wife of the elder brother, but she is very young, and in a very short period of time, she accepted that command as a bahu. Kafi means daughter-in-law, and various responsibilities regarding that. बहुत ही कम वक्त में उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर गेन कर रखी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अच्छी तरह से निभा रही है। एज अ बहू जो उसे निभानी चाहिए वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अच्छे से निभा रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, ऑलरेडी उसके ऊपर 3 मैन है, जो 3 जेंटलमैन हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलरेडी उसके ऊपर आ गई है। Okay, and now who are these 3 people? See, her husband, Mukesh, and their father. These 3 people are there, and she is having the responsibility of these 3 men. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. Veil their faces means they have to cover their faces. उन्हें अपने फेस को ऐसे कवर करके रखना होगा, वो ऐसे ही अपना ओपन फेस अपने एल्डर्स को, अपने बुजुर्गों को दिखा नहीं सकती। जो बहू है जो अपने बुजुर्गों को, अपने ससुर को ऐसे दिखा नहीं सकती अपना फेस। सो जैसे ही बुजुर्ग जो है, उनके ससुर जी है, जो फादर इन लॉ, वो जैसे ही एंटर होते हैं, वो धीरे से वॉल के पीछे से छुप जाती है और धीरे से अपना जो कोई अपना साड़ी का जो क्लोथ होता है उसकी हेल्प से अपने फेस को ऐसे कवर कर लेती है। बिकॉज ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसा कस्टम है, ऐसा रिवाज है, इसकी वजह से। In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. Actually this is the elder person here. ये जो elder person है, जो बुजुर्ग है, उसका प्रोफेशन भी यही है, बैंगल्स मेकिंग का। सो अपने प्रोफेशन की वजह से फर्स्ट वो टेलर है और उसके बाद वो बैंगल मेकर बन जाता है। सो इसकी वजह से वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाते हैं और अच्छे से इनकम भी नहीं कर पाते हैं। और अपने 2 सन्स जो है उसे वो सेम प्रोफेशन में ज्वाइन करने के लिए उसे वही चीज़ वो सिखाते हैं। वॉट? दैट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उसे भी वो बैंगल्स बनाने वाली चीज़ें ही वो उन्हें सिखाते हैं। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, हु हैज़ वॉच्ड हर own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Actually उसकी जो grandmother होती है मुकेश की, वो ग्रैंडमदर ऐसे इंसिस्ट कर पाती है कि यही उनका कर्म है, यही उनकी डेस्टिनी है और यही गॉड का लिखा
हुआ है और गॉड का लिखा डेस्टिनी का बनाया हुआ कोई कैसे तोड़ सकता है। उसने अपने हस्बैंड को बैंगल्स मेकिंग फैक्ट्री में वर्क करते हुए देखा है और उसकी डस्ट की वजह से उन्हें ब्लाइंड होते हुए भी देखा है, पर फिर भी वो अपनी पूरी जनरेशन को ही वो ऐसे इस प्रोफेशन में भेज रही है बिकॉज कि ऐसे सोच रही है कि यही उनकी डेस्टिनी है और यही उसका कर्म का लिखा हुआ है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Actually, bangles making के फैमिली में इन लोगों ने बर्थ लिया है, उनकी जनरेशन वो वाली है। इनफैक्ट उनका पूरा फैमिली ही ऐसा है, इसलिए उन्होंने बैंगल्स के सिवा तो और कुछ प्रोफेशन में देखा ही नहीं है। हर किसी के यार्ड्स में, हर किसी के घर पे, हर किसी की फैक्ट्रीज पे, जहाँ कहाँ भी वहाँ गया, यहाँ तक की स्ट्रीट्स में भी उन्होंने सिवाय बैंगल्स के कभी कुछ देखा ही नहीं। सो दे आर एक्चुअली टोटली सराउंडेड बाय द बैंगल्स। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ये जो रेनबो के कलर्स होते हैं उन्हीं में से अदर कलर्स भी बनाए जाते हैं और ये उनके कलर्स के नाम हमें यहाँ पे दिए गए हैं। lie in mounds in unkempt yards are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and the dark hutments next to lines of flames of lurking oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circle of bangles। यहाँ पे हमें बैंगल्स कैसे एक्चुअल में बनती है उनकी प्रोसेस हम यहाँ पे बताई गई है कि पहले उसका जो कलर होता है, फिर उनका जो ग्लास होता है, फिर उन्हें अच्छे से शेप देना होता है उसमें कलर मिक्स करके और उसे पूरा राउंडेड शेप में उसे वो लोग बनाते हैं। वो लोग उसे ऐसे ऑब्जर्व करते हैं और जो पीसेस होते हैं उन्हें पहले उसका वेल्डिंग करना होता है, मीन्स कि उसे ज्वाइन करना होता है, उसे अच्छे से वेल्डिंग करना होता है और उसके बाद ही वो ऐसे सर्कल शेप में अच्छे से बन सकती है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। यहाँ पे हमें कहा गया है कि उनकी जो आई साइट होती है वो डार्कनेस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन, और वो बाहर की जो लाइटनेस होते हैं उसमें वो लोग ऐसे कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं और इसी वजह से वो जब तक अडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो अपनी आई साइट खो देते हैं बड़े होने के बाद। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। यहाँ पे सविता की बात की गई है। सविता इज यंग वुमन, हमने जो यहाँ पे आगे की भी बात की है, वो एक पिंक ड्रेस में उसने वो पहना है और सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डर वुमन, जो एल्डर वुमन होती है उसके साइड में वो बैठ जाती है soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's सुहाग। उसे पता है कि वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और फिर भी वो एक मशीन की तरह बैंगल्स मेकिंग के प्रोफेशन में उससे हेल्प कर रही है। इस यहाँ पे ऐसे इंडिकेट किया गया है कि एक इंडियन लेडी के लिए, एक इंडियन वुमन के लिए उसके सुहाग की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, उसकी जो मैरिज में बिलीफ होती है, वो अपने मैरिज को कितना सीरियसली लेती है, उसे कितने मानती है, वो भी यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया गया है इसके थ्रू। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil, her hands dyed red with henna। henna मीन्स यहाँ पे हमें मेहंदी की बात की गई है कि जब भी उसके ऐसे घूंघट से उसका फेस जब कवर हो जाता है, जब उसकी कलाई में ऐसे बैंगल्स होती है, उसके हाथ में जैसे रेड कलर की मेहंदी लगी हुई होती है हैना वाली, सो तभी से उसके माइंड में एक सीरियसनेस आ जाती है और वो अपनी मैरिज को एक्सेप्ट कर लेती है और बस मैरिज ही उसकी लाइफ बन जाती है। लाइक द ओल्ड वुमन beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes। जो ओल्ड वुमन है जो कि उसके पास बैठी हुई है, वो भी एक दिन इसी तरह एक बहू बन के आई थी
और उसके रिस्ट में, उसकी कलाई में अभी भी बहुत सारी बैंगल्स हैं। पर हाँ, एक डिफरेंस है कि अब उसकी आइज़ में वो वाली ब्राइटनेस नहीं है जब वो बहू बनकर आई थी। अब उसकी आइज़ में वो बहुत ही डल बन चुकी है, क्योंकि वो थक चुकी है अपनी लाइफ से भी और इन सब चीज़ों से भी, क्योंकि उसे पता है कि इसका एडवांटेज नहीं है। बट देन ऑल्सो शी इज़ नॉट एबल टू स्टॉप दिस प्रोफेशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स, दैट्स व्हाई। एक वक्त सेब पर खाना भी नहीं खाया, शी सेज in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. This is very pathetic condition, very pathetic situation of her life. कि उसने अब एक दिन का, एक वक्त का खाना भी उसे ठीक से अच्छी तरह से खाने को नसीब नहीं हुआ. That's what she has ripped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. वो ऐसे बोलते हैं कि मुझे और कुछ भी नहीं आता है, मुझे सिर्फ बैंगल्स ही पता है, बैंगल्स मेकिंग ही मुझे पता है, इसके सिवा और कुछ भी मुझे नहीं पता. All I have done is make a house for the family to live in. कि मैंने यही किया है अपनी फैमिली के लिए, ताकि हम एक घर में अच्छे से रह सके. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. At least he is not that much poor that he is not having even his own roof. इतने तो ज़्यादा poor नहीं है ना कि उनके पास रहने को छत भी नहीं है. हाँ, पैसों की कमी है, कभी कभी खाने की कमी है, कभी कभी, पर एटलीस्ट उसके सिर पे छत तो है, जो कि बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए तो ये भी नसीब नहीं हो पा रहा. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, कि वो इसके सिवा और कुछ कर ही नहीं पाते हैं. The cry of not having money, वो ऐसे बहुत ही दुखी है, दुख की वजह से वो रो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और बैंगल्स मेकिंग के सिवा और कुछ वो करना चाहते नहीं, और आई साइट तो उनकी अब रही नहीं कि वो अब बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में वो ऐसे ज्वाइन कर सके. Not even enough to eat, rings in every home. उसके पास खाने को कुछ पैसे भी नहीं है, खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं है, इसलिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. यहाँ पे हमें ऐसे बताया गया है कि ईयर्स आफ्टर ईयर्स पास होने में कभी कभी ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स में ऐसे कुछ है कि बैंगल्स मेकिंग के प्रोफेशन से उन्हें कहीं अलग जाना है, उन्हें कुछ नया करना है, दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. बट एक्चुअली फिरोज़ाबाद के लोगों में ऐसी ड्रीम करने की, सपने देखने के, डिटरमाइन करने की, कुछ और नया करने की जैसे डिटर्मिनेशन ही जैसे ख़त्म हो चुकी है. उन्हें ऐसे लगता ही नहीं, वो ऐसे सोच भी नहीं पाते कि हम कुछ अलग भी कर सकते हैं, इसके सिवा भी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, बहुत सारे टेक्निक्स हैं टू अर्न द मनी. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. ये लोग ऐसे बताते हैं कि वो ऐसे कॉर्पोरेट वाला जो फील्ड है हमारा, जो उसे ज्वाइन करने की जो राइटर है वो एडवाइस देते हैं. पर इन लोगों ने ऐसे बोला कि हम अगर ऐसे कुछ करने को जा भी रहे हैं तो भी हम पुलिस हमें परेशान करेंगी, हमें ट्रबल करेगी, क्योंकि हमने कुछ इलीगल किया हुआ है. चाइल्ड लेबरिंग की बात भी यहाँ पे एक मेंशन की गई है. दे से देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनका कोई लीडर ही नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसे कोई है ही नहीं जो चीज़ों को अलग तरीके से देख सके. सभी एक तरह से ही सोच रहे हैं. दे ऑल आर थिंकिंग लाइक द सेम. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी इतने ही थक चुके हैं जितने कि वो थक चुके हैं.
They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो इस तरह से बात करते हैं और बात का सेंट्रल आइडिया है उनकी जो पॉवर्टी है, जो उनका ग्रीडीनेस होता है, उनका जो इंजस्टिस है, इन सारे थॉट्स को ही वो रिवेल करते हैं और इन सारे थॉट्स को ही वो क्रिएट करते हैं. मीन्स उनके माइंड में कहीं भी तरीके से कोई पॉजिटिविटी अब बची नहीं रहती. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of sahukars, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Actually, इनकी बात सुनकर जो राइटर है उन्हें टू ग्रुप ऑफ पीपल उन्हें वो फाइंड करता है. मीन्स उसके ऐसे नज़र में आता है कि यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं. एक तरह के लोग जो इन लोगों की तरह है, जो डरे डरे रहते हैं, गरीब रहते हैं, सबसे बचकर रहते हैं और घबराए हुए रहते हैं. द सेकेंड ग्रुप इज़ लाइक दिस पुलिस मैन, द साहूकार्स, द पॉलिटिशियंस, कि जो लोगों को डराते हैं, जो लोगों को धमकाते हैं, जो लोगों के हेड बनकर रहा करते हैं. सभी पुलिसमैन एक जैसे नहीं होते, बट यहाँ इट इज सेड इन दैट वे. यहाँ इस सेंस में बात की गई है, इसलिए हम इस तरह के सेंस में यहाँ पे ले रहे हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. टुगेदर they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. और जब भी चाइल्ड को पता चलता है कि उसे बेगिंग करना है, कि उसे ये सब चीज़ें करना है जो कि उसमें वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं, पर जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसके पहले तो वो अच्छी तरह से वो ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है अपने फादर की तरह ही. मीन्स ही विल नॉट बी एबल टू अपोज दिस थिंग्स. वो इस चीज़ों को अपोज करने के लिए फिर वो एबल नहीं रहेगा. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. कुछ अलग करना वो एक हिम्मत की बात होगी. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और हिम्मत तो उनके ग्रोइंग अप में, उनके बड़े होने की परवरिश में उनका एक पार्ट कभी था ही नहीं. मीन्स करेज उनमें कभी आई ही नहीं. When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered. जब मुकेश में मैंने यहाँ के जो बिगिनिंग के पार्ट में हमने जो डिस्कस किया, I want to be a motor mechanic, तो राइटर ये बोल रहे कि जब मुकेश में मैंने ये डैड देखा, ये एक उसमें आंखों में एक चमक देखी, then I was very happy, I became very happy. I want to be a motor mechanic. He repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. वो ऐसे बोल रहा है कि गैरेज तो उसकी घर से काफ़ी बहुत दूर है, तो फिर वो वहाँ पे कैसे पहुँचेगा. Then he insists that he will walk also. कि अगर गैरेज बहुत दूर है तो क्या हुआ, वो चल के भी तो जा सकता है. He insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. मीन्स उससे राइटर ने जो है ये सवाल पूछा कि तुम प्लेन उड़ाने के बारे में भी सोच रहे हो क्या, और वो साइलेंट हो जाता है. नो, ही सेज. फिर वो आंसर देता है कि नहीं. Staring at the ground in his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down and streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. यहाँ पे हमने ये बात की गई है कि अभी उसने ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया, पर उसकी माइंड में ऐसा कोई थिंकिंग ही नहीं है, ऐसा कोई थॉट्स ही नहीं है कि वो प्लेन को भी ऐसे फ्लाई करना चाहता है. और अच्छी बात है कि अभी तक उसने ऐसे कुछ सोचा भी नहीं है. इट मीन्स उसका गोल शायद अभी परफेक्ट बनने की ओर जा रहा है, क्योंकि उसने अभी ऐसे सोचा नहीं है. बट देन लास्ट द राइटर सेड दैट फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. मीन्स कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो फिरोज़ाबाद के ऊपर से जा रहे हैं. मीन्स राइटर ने तो ऐसे ही पूछा था उसकी थिंकिंग, उसकी मेंटालिटी जानने के लिए, बट नाउ इट इज़ मेंशन प्रॉपरली दैट ही इज़ इंटरेस्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक. फर्स्ट वो ऐसे एम्बेरस फील करता है कि उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं, बट देन उसका अभी कोई रिग्रेट उसे फील नहीं हुआ है और वो अभी मोटर मैकेनिक बनने की ही उसने सोच रखी है. सो हियर एक्चुअली मुकेश इज़ अ बॉय
who actually wants to do something different, who wants to be something different rather than following the same tradition. वो ऐसे लड़का है कि जो उसे सेम पैटर्न फॉलो नहीं करनी है और वो कुछ अलग करना चाहता है. So here the second part ends up with this all description of making bangles, this profession of making bangles, the tradition, the customary, the people, so many people actually they suffer because of this profession. All the family members suffer and they do not have the vision in both the senses. फर्स्ट सेंस में कि वो एक्चुअल में अपना विजन लॉस कर देते हैं, अपनी आई साइट लॉस कर देते हैं, और सेकेंड सेंस में कि उनका कोई विजन ही नहीं है लाइफ में, उनका कोई ड्रीम ही नहीं है कि उन्हें आगे इसके सिवा भी और कुछ करना चाहिए. सो इन बोथ द सेंस दिस chapter actually the second part deals with this concept, with this theme, and Mukesh is something different from this group of people. So here we end up for this lesson. यहाँ पे हमने ये lesson complete किया है. Suppose students you find any difficulty, any query, you are free to ask me anytime. Students, take care of yourself. Yeah, your today's homework is you have to do this understanding the text and this inside questions, think as you read. Second part में से जो think as you read है वो वाला question आपको करना है. This and another also is there. So these things you have to do as your homework. Okay students, do your best. Thank you students. Have a nice day.